Hello everyone. Today in object oriented programming we are going to discuss one program that is related to constructor. We can also say that it is of constructor overloading, as we had learned constructor types like default constructor, parameterized constructor, right? Copy constructor. Okay, so today we are going to illustrate that constructor overloading. Now in that, first of all, we have to write header file hash include iostream.h and conio.h. Now in this program we are going to create a class of complex number. Now first of all, what is complex number? Like I think you had already learned complex number like a plus bi, right? तो ये फॉर्म को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं a plus bi. Now here a part is called as real and b part is called as imaginary part, right? But instead of this, in our program we had write like this a plus j b, right? So here j के साथ जो होगा वो imaginary part होगा and a is a real. Like that is this method is used in our book. So I used second method. Now in class complex, now let us take two variable like float variable. First one is real and second one is imaginary part, right? Now both are private. Let us take public constructor. फर्स्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. इसमें रियल और इमेजनरी वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी. सो वी हैव टू राइट क्लास नेम बिकॉज कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम with no parameter. So here real equal to 0, real equal to 0 and image equal to 0 here, right? So here both are assigned with a default value 0. Now let us create a constructor with single parameter complex float a. So here real इक्वल टू इमेज इक्वल टू ए. सो दोनों पैरामीटर में सिंगल एक ही वैल्यू आएगी. नाउ राइट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ टू पैरामीटर दैट इज फ्लोट ए फ्लोट बी. सो रियल इक्वल टू ए एंड image equal to b, right? So here I discuss all the constructor. Now let us write a function friend void show. Now here just write show function like display. It is like display function. We have to display the value of complex number, right? बट यहाँ पे friend function लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल नहीं होगा, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट डालेंगे दैट इज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स क्लास and write another friend function. Return type उसकी होगी complex and function name is sum. In that we have to pass two parameter because यहाँ पे हमें two complex number का addition करना है. दोनों मैंने friend function लिया है, right? Now let us define both the function out of the class like void show complex c. now डिस्प्ले करना है हमें cout real then plus sign with j and then image value, right? So here I write /n for new line, right? It will display real and imaginary. but कौन से ऑब्जेक्ट की c डॉट रियल एंड c डॉट इमेज, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा, राइट?
Now another function, return type complex sum complex C1 comma complex C2. इन दैट हमें ऐड करना पड़ेगा और रिटर्न कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा, तो थर्ड ऑब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स, राइट, जैसे कि हम टाइम क्लास में करते थे कॉम्प्लेक्स C3. नाउ C3 डॉट रियल, यहाँ पे एडिशन मतलब रियल का रियल वैल्यू के साथ C1 की रियल वैल्यू C2 के रियल वैल्यू के साथ एडिशन होगा और C1 की इमेजिनरी वैल्यू का C2 की इमेजिनरी वैल्यू से एडिशन होगा. तो C3 डॉट रियल इक्वल टू C1 डॉट real plus C2 dot real and C3 dot image equal to C1 dot image plus C2 dot image, right, and end may return C3. Okay, that is the sum function. Now just write integer main. Let us write the structure of integer main function. Now in that, first of all create complex C1. ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, फॉर एग्जांपल C1, राइट. तो C1 हम सिर्फ लिखेंगे एंड देन शो फंक्शन कॉल करेंगे एंड C1. ठीक है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर, C1 के रियल और इमेजिनरी वैल्यू क्या होगी, लेट अस चेक इट. Compile, no error, and run it. See 0 plus j 0, right. तो 0 0 आएगी, क्यों, क्योंकि वो इन्वॉक करता है कौन से कंस्ट्रक्टर को, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, राइट. समझ में आया. C1 यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने सिंगल वैल्यू डाली, फॉर एग्ज़ाम्पल 5. सो यहाँ पे क्या होगा, इट इन्वॉक सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर. ठीक है, लेट अस रन इट. 5 plus j5, राइट. नाउ फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स C2, इन दैट 3 प्लस 2 दो पैरामीटर पास किए, मतलब 3 जो है वो रियल में जाएगा और 2 जो है वो इमेजिनरी वैल्यू में जाएगा. तो इट इन्वॉक्ड डबल पैरामीटर, राइट, कंस्ट्रक्टर, सिंगल पैरामीटर एंड डबल पैरामीटर. डबल पैरामीटर मतलब ये वाला और सिंगल पैरामीटर मतलब ये वाला, राइट. ये दो कंस्ट्रक्टर C1 में पहले वाला और C2 में दूसरे वाला कॉल होगा. नाउ शो C1, शो फॉर एग्जांपल C2, तो क्या प्रिंट होगा, लेट अस रन इट, राइट. 5 plus j5 and 3 plus j2. ओके, नाउ लेट अस सम इट. सम फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर दैट कॉम्प्लेक्स C3, देन C3 इक्वल टू सम C1 कॉमा C2, राइट, एंड शो करेंगे वैल्यू C3. ओके, नाउ अगेन run it. so answer is 8 plus j7. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है. नाउ फॉर एग्जांपल कॉपी कंस्ट्रक्टर हमें सीखना है. ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर सीखने के लिए फॉर एग्जांपल हमें C1 इमेज की कॉपी बनानी है, तो फिर से कंस्ट्रक्टर कॉम्प्लेक्स, इन दैट कॉम्प्लेक्स, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो हमें ब्रैकेट में क्या पास करना पड़ेगा, रेफरेंस. फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट पास किया एम्परसेंड C. तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रियल इक्वल टू C डॉट रियल एंड इमेज इक्वल टू C डॉट इमेज. मतलब जो हम पैरामीटर में ऑब्जेक्ट पास करेंगे उसकी रियल और इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी. लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ I write another object C4, in that I pass for example C2 and print C4 like show C4. तो क्या आंसर आएगा, C4 में क्या आंसर आएगा, लेट अस रन इट. 3 plus j2, राइट. तो वो सेकंड ऑब्जेक्ट को हमने
कॉपी कर दिया है, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है वो भी मैंने दिखा दिया, पैरामीटराइज कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो भी मैंने दिखा दिया, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है वो भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो हियर आई कंप्लीट द प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नाउ फॉर एग्जांपल शो और सम फंक्शन को फ्रेंड नहीं बनाया होगा तो क्या करेंगे, लाइक यहाँ से फ्रेंड निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पैरामीटर भी निकाल देना है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा ये फंक्शन को, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पास होगा, ठीक है। तो यहाँ से सी डॉट रियल की जगह पे सिर्फ रियल और यहाँ पे इमेजनरी। सो यहाँ पे शो फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, लाइक शो एंड ब्रैकेट में C1 नहीं लिखते हैं, क्या लिखना है, C1 डॉट शो एंड C2 डॉट शो, ब्रैकेट में पास नहीं करना है। सेम यहाँ पे C3 डॉट शो एंड C4 डॉट शो, ठीक है। फिर से रन करते हैं, ये प्रोग्राम रन होता है कि नहीं, ओके। अनडिफाइंड सिंबल रियल, ओके। यहाँ पे हम भूल गए हैं कॉम्प्लेक्स क्लास का नंबर, कॉम्प्लेक्स क्लास का फंक्शन है वो लिखना है, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, नाउ फंक्शन 9 के साथ, राइट। प्रोग्राम रन होता है, आउटपुट भी सेम आता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स यहाँ से भी निकाल देंगे, तो सेम यहाँ पे रिटर्न टाइप और क्लास नेम कौन से क्लास का है वो लिखना पड़ेगा विथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। नाउ C1 ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि C1 ऑब्जेक्ट थ्रू फंक्शन कॉल होगा। नाउ C1 ऑब्जेक्ट थ्रू फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक ही ऑब्जेक्ट पास होना है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी निकल जाएगा, राइट। लाइक हमने टाइम क्लास में मैंने सिखाया था आपको ये कंसेप्ट। तो अब C1 डॉट सम हो रहा है तो यहाँ से पैरामीटर में से C1 निकल जाएगा, ठीक है। लेट अस रन, fine, okay. So here I described the constructor overloading. In next video I will describe dynamic constructor with destructor also with example, ठीक है। So be prepared, and if you have any query regarding this program you can message me. Thank you.